First is the mountains of Europe. First is your Alps. देखेंगे these are the young fold mountains of Europe. Young fold mountains of Europe. And the highest peak is Mount Blanc. The highest peak is Mount Blanc. Next is Caucasus Mountains. These lies between Black Sea and Caspian Sea. Black Sea and Caspian Sea. And the highest peak of Caucasus is Mount Elbrus. It is the highest peak of Europe. Highest peak of Europe. And it lies in Russia. Next is your Black Forest Mountains. ये जर्मनी में है. And these are example of block mountains. Next is Vosges at the border of Germany and France. Again, example of block mountains. Mountains, Vosges, Vosges, at the border of Germany and France. Again, example of block mountains. Then we have Ural Mountains. These are old fold mountains. Old fold mountains of Europe, and they lies in Russia. मैं कल बताया था आप लोगों को 3 physical features that separates Europe and Asia, है ना? ये वो Ural Mountains. Now, important rivers. Important rivers of Europe. First and foremost is your Seine. Seine river. ये मेजर रिवर है फ्रांस की. And Paris city is located on river Seine. Next is your Rhine river. इसको नाम दिया जाता है backbone of Europe. It's a major river of Germany. Major river of Germany. Next point, very important, it flows through a rift valley. इंडिया में कौन से रिवर्स हैं तो रिफ्ट वैली से फ्लो करते हैं? सब जोर से. नर्मदा, तापी, तीसरी एक और है दामोदर. ठीक है. It again flows through a rift valley between Vosges and Black Forest Mountains.
It makes estuarine delta in Netherlands. It makes estuarine delta in Netherlands. इंडिया में एक रिवर है जिसको बोलते हैं रूहर ऑफ इंडिया. याद करो, दामोदर को बोलते हैं ना रूहर ऑफ इंडिया. क्यों बोलते हैं? रूहर इज अ ट्रिब्यूटरी टू राइन एंड इट्स वैली इज द रिचेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ यूरोप. तो इंडिया में दामोदर की वैली इज अगेन रिच इन कोल. आई होप यू रिमेंबर, सब लिखवाया था आप लोगों को, लिखवाया था ना? ठीक है. तो वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी इज रूहर, which is the richest coal producing area in Europe. Tributary Ruhr. The next river is your Rhone. Rhone. It is in France and its valley is famous for silk production. Famous in silk production. अब देखो, जो हमारा यूरोप का मैप है वो कुछ ऐसे है. अब यहां से नॉर्थवर्ड जाती है हमारी राइन रिवर, साउथवर्ड आती है रोन रिवर. ये राइन है, ये रोन है. राइन गिरती है हमारी वाटर बॉडी कॉल्ड एज नॉर्थ सी. रोन गिरती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर. अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है बाय द मीन्स ऑफ कैनाल. इसको बोलते हैं राइन रोन कैनाल. नेक्स्ट लिखेंगे राइन रोन कैनाल. राइन रोन कैनाल. This canal connects these two rivers. This canal connects these two rivers with which ships from North Sea can reach up till Mediterranean Sea. With which ships from North Sea can reach up till Mediterranean Sea and vice versa. It is the busiest inland waterway of Europe. It is the busiest inland waterway of Europe. Next river is your Danube. It originates from Black Forest Mountains and drains into Black Sea. तो ब्लैक फॉरेस्ट हमारे जर्मनी में है और ये अपना डेल्टा बनाती है इन रोमानिया और गिरती किधर है? ब्लैक सी के अंदर. अब इसकी खासियत क्या है? ऑन इट देयर आर 5 कैपिटल cities. Capital cities are located on its banks. अब हम बात करेंगे from upstream to downstream. First is Vienna.
capital of Austria. Second is Bratislava, capital of Slovakia. Third is Budapest, capital of Hungary. Then Belgrade, capital of Serbia. Then is Bucharest, capital of Romania. So these 5 capital cities are located on river Danube. Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrade, and Bucharest. Next river is Tiber. ये इटली में है and Rome is located on it and your Vatican City. World's smallest country, both are Rome and the Vatican City are located on river Tiber. Now last is major river जो आपको करनी है, that is Volga. Volga. It is the longest and largest river of Europe. Longest and largest river of Europe. And it drains into Caspian Sea. और ये किस कंट्री में है? रशिया. अब वोल्गा यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है, तो रशिया की नहीं. तो रशिया की लॉन्गेस्ट नहीं है. रशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो उसके एशियाटिक पार्ट में है और उसका नाम है ओब. दिस इज द लॉन्गेस्ट river of Russia and it lies in its Siberian part. Lies in Siberia. ये साउथ से नॉर्थवर्ड फ्लो करती है और ये आर्कटिक ओशन में गिरती है. तो ओब रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ड्रेन्स इनटू आर्कटिक ओशन. तो यूरोप की लॉन्गेस्ट वोल्गा है और वोल्गा रशिया में है, बट वोल्गा इज नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ रशिया. Longest river is Ob, which lies in its Asiatic part, that is Siberia. It flows from south to north and drains into Arctic Ocean. ठीक हो गया जी. ये थी मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप. नाउ लेक्स. क्या बोल रहे हो? क्या फोर्थ नंबर? रिवर डैन्यूब. DANUBE. ठीक हो गया. नेक्स्ट important lakes. First is your Lake Ladoga, largest lake of Europe, and it is in Russia. Second is Lake Onega, again is Russia. And third is your Lake Geneva. ये नाम सुना होगा आपने सिटी का, स्विट्जरलैंड. ठीक हो गया. नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ यूरोप. ये हमने ऑलरेडी किया था शायद, ना. ट्रॉपिकल और टेम्परेट में डिफरेंस क्या था तो बताया था ना. तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ यूरोप कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज स्टेपी. दे आर वेल डेवलप्ड इन यूक्रेन एंड रशिया. इन्हीं की कॉन्टिन्यूएशन हंगरी में कौन सी थी? पुस्टाज.
Now, Europe is the only continent where there is no desert. There is no desert. चाहे वो cold हो, चाहे वो hot हो. तो यूरोप में there is no desert. पेनिनसुलास करने हैं इसके, कर लो. Important peninsulas of Europe. Number 1 is Iberian Peninsula. इसके ऊपर 2 कंट्रीज हैं. One is Portugal and second is Spain. Second is Scandinavian Peninsula. इस पे भी 2 कंट्रीज हैं. One is Norway and Sweden. Then we have your Kola Peninsula. It is in Russia. Fourth is Crimea Peninsula. It was with Ukraine, but recently it is occupied by Russia. Crimea, occupied by Russia. Next we have Balkan Peninsula. Balkan Peninsula पे कुछ कंट्रीज हैं जैसे बल्गेरिया. टर्की का कुछ पार्ट यूरोप में भी है, तो इस पेनिनसुला के ऊपर वो छोटा सा पार्ट टर्की का भी आता है. Then we have Greece. Then we have Montenegro. And last में North Macedonia. तो Balkan Peninsula is occupied by Bulgaria, Turkey, Greece, Montenegro और North Macedonia. फिर एक इटली की कभी शेप देखोगे आप तो बड़ी पेक्युलर सी शेप है उसके पेनिनसुला की. इटली का भी पेनिनसुला है, उसको बोलते हैं बूट शेप्ड पेनिनसुला. दैट इज इटली. ठीक हो गया. Now, important water bodies surrounding Europe. Important water bodies surrounding Europe. अब यूरोप के सदर्न पार्ट पे we have a major sea. उसका नाम क्या है? मेडिटेरेनियन सी. एक पेनिनसुला और लिख लो यार, जुटलैंड पेनिनसुला. ये डेनमार्क. ये जटलैंड नहीं है, जुटलैंड है. नॉट द लैंड ऑफ जट्स. ठीक है, जुटलैंड. चले, ये जो वाला पार्ट मैंने बनाया ना, ये है डेनमार्क. नाउ ये है आपका मेडिटेरेनियन सी. ये है आपका ब्लैक सी. ये है पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सी. फिर यहाँ पे हमारे आइलैंड ऑफ यूके हैं. यहाँ पर एक आता है आपका नॉर्थ सी, वेरी फेमस. ये है आपका बाल्टिक सी. यहाँ पर आपकी आती है इंग्लिश चैनल. ये है आपका बे ऑफ बिस्के.
दो स्ट्रेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक ये, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, एक ये स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। जो सदर्न कोस्ट है फ्रांस की, उधर एक गल्फ है, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ लायंस। चलो जी, लिखेंगे फर्स्ट मेडिटेरेनियन सी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी फेमस नाउडेज, खबरों में आता है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, हिंदी नेम फॉर मेडिटेरेनियन सी। देखेंगे पहला, it is surrounded in north by Europe. It is surrounded in north by Europe, comma, in south by Africa, and in east by West Asia. तो इसके नॉर्थ में यूरोप है, साउथ में अफ्रीका है, और ईस्ट में वेस्ट एशिया। और ये अटलांटिक ओशन के साथ जुड़ा हुआ है विद दिस स्मॉल वाटर बॉडी कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखेंगे नेक्स्ट, इट इज कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशन वाया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इट इज कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशन वाया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो उसको एक नाम दिया जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को, आगे इसके डैश डाले, नोन एज की टू मेडिटेरेनियन सी। की टू मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट लिखेंगे गल्फ ऑफ लायंस। गल्फ ऑफ लायंस, it is part of Mediterranean Sea, part of Mediterranean Sea, and it makes southern coast of France, part of Mediterranean Sea, and it makes southern coast of France. Next लिखो Adriatic Sea, again part of Mediterranean Sea, part of Mediterranean Sea, and it separates Italy, and it separates Italy and southern European countries, and separates southern European countries, especially Croatia and Slovenia, especially Croatia and Slovenia। मतलब इसके यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, ये स्लोवेनिया और क्रोएशिया हैं, ये हमारा इटली है। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी। इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी and is known as key to Black Sea. अब ब्लैक सी में भी एक और छोटा सा सी है, इसको बोलते हैं सी ऑफ अजोव।
यहां पे भी एक छोटी सी स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रेट ऑफ कर्च, KERCH, स्ट्रेट ऑफ कर्च। इट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। इट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, अब जो भी नई नई स्विमिंग सीखता है इंडिया में, सबसे पहले वो अपने स्विमिंग का हुनर कहाँ दिखाता है? इंग्लिश चैनल को क्रॉस करता है ना। इट इज सेपरेटिंग फ्रांस एंड यूके। लेंगे इंग्लिश चैनल। इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। इंग्लिश चैनल, इट इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन and lies between UK and France. Lies between UK and France. अब देखें, अगर ये हमारा फ्रांस है, ये हमारा यूके है, ये हमारे इंग्लिश चैनल है। अब यहां पर एक अंडर द सी बेड ऑफ इंग्लिश चैनल एक रेलवे टनल बनाई है, उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल टनल। लिखेंगे नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल टनल। English Channel Tunnel. It is a railway tunnel. It is the railway tunnel under the seabed. Under the seabed. Bed, seabed by. Under the seabed of English Channel, connecting UK and France. Next point, it is 50.45 kilometers long. 50.45 kilometers long and was completed May 1994. Completed in May 1994. Next point, the two terminal points. The two terminal points of this railway tunnel are, अब इसका एक टर्मिनल पॉइंट यूके में होगा, एक टर्मिनल पॉइंट फ्रांस में होगा। यूके वाले का नाम है डोवर, फ्रांस वाले का नाम है कालियास। The two terminal points of English Channel Tunnel are Dover in UK and Calais in France. और ये कब बनी थी और ये कहाँ बनी है? अगर ये आपका सी लेवल है तो इंग्लिश चैनल के सी बेड के अंदर ये टनल बनी है, जो यूके को और फ्रांस को लिंक करते। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हमारे यहाँ नाचनी टनल बनी थी, लोग स्पेशल देखने जाते थे, तो वाह क्या बनाया है। ठीक है, ये 1994 में बनाई उन लोगों ने, 1994 में। ठीक है जी, और 50.45 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, चले नेक्स्ट, नॉर्थ सी। पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, part of Atlantic Ocean, lies in northwestern part of Europe,
part of northwestern Europe and is important for the production of oil and natural gas in Europe. Important for the production of oil and natural gas in Europe. ठीक हो गया? Then हम देखेंगे 4 largest countries of Europe. 4 largest countries of Europe. Number 1 is your Russia. 2 Ukraine. यहाँ भी दो साथ साथ दोनों best friends. Third is France. Fourth is Spain. Next, most populous countries of Europe. First is Russia. 2 is Germany. Third, UK. Fourth, France. Next, most densely populated countries of Europe. Most densely populated countries of Europe. First is Monaco. 2 Vatican. First Monaco. Second Vatican. Third Malta. Fourth San Marino. San Marino. S-A-N San Marino. M-A-R-I-M-E-R-I-N-O. Marino. अब जो मोनाको है उससे आगे डैश डालो. It is also the most densely populated country in the world. यूरोप की तो डेंसली पॉपुलेटेड है ही है, पूरे वर्ल्ड की भी सबसे ज्यादा डेंसिटी मोनाको में है. और कितनी डेंसिटी है इसकी? 24,500. तो 24,500 people living in 1 square kilometer area. 24,500 people they live in 1 square kilometer. Next देखेंगे least densely populated. Least densely populated country in Europe. Iceland. ठीक हो गया जी. अब लिखेंगे important terms of Europe. First, Baltic states. Baltic states 3 countries को कहा जाता है. First is Lithuania, Latvia and Estonia. ये तीनों कंट्रीज कभी फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट थी. जब ये ब्रेक हुआ तो ये तीनों कंट्रीज भी अलग हुई एंड दीज लाइज अलोंग द बाल्टिक सी. और इनको नाम दे दिया बाल्टिक स्टेट्स. लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया. इनकी कैपिटल्स लिथुआनिया की है विल्नियस, लाटविया की है रीगा और एस्टोनिया की है तालिनिन. Next term is called as low countries. Again, these include 3 countries. First is
लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। इन तीनों को लो कंट्रीज क्यों कहा जाता है? बिकॉज these countries lies below the sea level. Lies below the sea level. Third is called as Scandinavian countries. Scandinavian countries. It is a group of 4 countries. Number 1 is Iceland. Second is Denmark. Third is Norway. Fourth is Sweden. इनको क्यों कहते हैं? Because of the old Scandinavian culture is found in these 4 countries. अब कुछ लोग हैं जो इसमें फिनलैंड को भी ऐड कर देते हैं, बिकॉज बगल में ही है ये भी। अगर आप फिनलैंड को ऐड करते हैं तब इनको बोलते हैं फेनो स्कैंडिनेविया। अगर आप फेनो स्कैंडिनेविया बोलेंगे तब फिनलैंड ऐड होगा, सिर्फ स्कैंडिनेविया बोलेंगे तो उसमें फिनलैंड ऐड नहीं होगा। अब देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। हमने अभी किया था पहले स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, तो कंट्रीज लोकेटेड ऑन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से 2 हैं, नॉर्वे और स्वीडन। These are located on Scandinavian Peninsula. बट जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें ये 4 आती। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। बट कंट्रीज लोकेटेड ऑन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला वो सिर्फ 2 हैं। एक कौन सी है? नॉर्वे, और दूसरी स्वीडन। ठीक हो गया? चले, यूरोप इज ओवर। Anybody having any doubt in Europe? Political, physical? किस किस ने याद कर लिया यूरोप? कोशिश भी नहीं की? मैडम कोशिश की? अभी नहीं की। हाँ जी भाई साहब, नहीं की? नहीं, कब करनी है? फिर मैं पढ़ा क्यों ना हूं? ऐसे पेपर मेरा है, आप लोगों का। फिर याद ही आप नहीं करना है, मेरे को तो आता है। ठीक है, फिर चलो शाबाश। नेक्स्ट, अफ्रीका। भाई देखो ऐसा है, वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब हर दिन हर लेक्चर में इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। अगर साथ साथ में आपने याद नहीं किया, फिर एक स्टेज आएगी, बोलेगा नहीं, भाड़ में जाए, वर्ल्ड करना ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में करोगे तो होता जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेज मत आने दो जब आपको ये लगे कि अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे साथ साथ में ही, तो आपको ये याद होता जाएगा। देखो दी, ये सिंपल प्रैक्टिस है। कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। एक जगह हाथ रखो, कंट्री कंट्री कैपिटल, फिर याद करके बोलो। बस वो नहीं करते थे, हाथ रख के याद करते थे हम चीजों को। उसका क्या है, फिल द ब्लैंक्स, है ना। पर्यायवाची शब्द, तो ये शब्द क्या बोलते थे, है ना, कैसे याद कर देते थे हाथ रख के। तो एक तरफ पे वर्ड होता था, उसके होता था पर्यायवाची शब्द क्या होता है ना, हिंदी में, इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो। तो याद भी है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। मुहावरों को भी ऐसे याद करते थे, तो वैसे इनको भी याद करना है, याद करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अभी साथ साथ करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, चले। नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका हमारा कुछ ऐसे दिखता है।
ठीक हो गया। अब अफ्रीका के साथ हमारा यहां से शुरू होता है एशिया, फिर ऊपर हमारा आ जाता है यूरोप। ठीक है ना। तो अफ्रीका के साथ यूरोप और यहां पे माना जाता है एशिया। ये है आपका अफ्रीका। ठीक हो गया। तो पहले हम करते हैं अफ्रीका की कोस्टल कंट्रीज। अब मैं कंट्रीज लिखता जाऊंगा। जो आपको कंट्री पसंद नहीं आया उसको चाहे मत लिखना, ठीक है। जो आपने सुनी ना हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो सुनी है उनको लिखते जाओ। ठीक हो गया। चले। फर्स्ट इज मॉरिटानिया, सेकंड इज वेस्टर्न सहारा, देन मोरक्को, पक्का सुना होगा, देन अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, अरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, पक्का सुना होगा। अरिट्रिया और जिबूटी शायद ना सुना हो। वेस्टर्न सहारा शायद ना सुना हो। मॉरिटानिया भी शायद ही सुना हो। ये बाकी सभी सुनी होंगी, है ना। चले आगे। नंबर 12, ये पक्का सुना होगा, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, देन योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन कॉन्गो, गेबन, इक्वेटोरियल गिनी नहीं सुना होगा, कैमरून पक्का सुना होगा, वेरी फेमस फुटबॉल प्लेइंग नेशन ऑल्सो, वर्ल्ड कप में यूजली अच्छा खेलते हैं कैमरून वाले। देन नाइजीरिया, बेनिन का नाम नहीं सुना होगा, टोगो का नाम नहीं सुना होगा, छोड़ दो उनको। घाना का नाम पक्का सुना होगा। वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है वो कहां से आता है? घाना से आता है। लाइबेरिया का शायद नाम नहीं सुना होगा। कोटे डी आइवरी, जिसको पहले आइवरी कोस्ट बोलते थे, नहीं सुना होगा। कोटे डी आइवरी, फॉर्मली कॉल्ड है आइवरी कोस्ट। सियरा लियोन का नाम सुना है? देन गिनी, गिनी बिसाऊ, सेनेगल, गाम्बिया, छोड़ दो। जिनका नाम नहीं सुना हुआ पुट इट डाउन। ठीक हो गया। अब किस किस का आपको करना चाहते हो? चलो आप ऐसे करो, मोरक्को, अल्जीरिया, सूडान तक तो करो। सोमालिया,
कीनिया, तंजानिया, मोज़म्बिक, नामीबिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर घाना, कैमरून, नाइजीरिया। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये मेजर कंट्रीज हैं। मोरक्को कैपिटल रबत, अल्जीरिया अल्जियर्स, तुनिशिया ट्यूनिस, लिबिया ट्राइपोली, इजिप्ट वेरी फेमस कायरो, सूडान खर्तूम, सोमालिया मोगादिशु, कीनिया नायरोबी, तंजानिया डोडोमा, मोज़म्बिक मापुतो। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफॉन्टेन। आप सिर्फ प्रिटोरिया याद रखो। नामीबिया विंडहोक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की किनशासा, कैमरून युवांडे, नाइजीरिया अबुजा, घाना आक्रा, कोटे डी आइवरी की योमोसोक्रो, सेरालियोन, अब आपने टर्म सुनी होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसी भी कंट्री में वहां की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर आप ये एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो कितने साल तक वहां पर जिएगा। उसको क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक हो गया। जैसे इंडिया में इट इज अराउंड 72 ईयर्स तक। सियरा लियोन में वर्ल्ड की सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसको बोलते हैं यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। इसके हिसाब से मुझे अभी तक मर जाना चाहिए था जितनी एक्सपेक्टेंसी यहां पर है। ठीक है, तो जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सियरा लियोन में है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। कितनी है? एनी गेस? 35 ईयर्स। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी सियरा लियोन में। और आप लोग सब तैयार रहो, मैं तो खत्म हो चुका हूँ। ठीक है, और आप बहुत छोटे हो अभी। ठीक है ना? तो 35 years is the life expectancy in Sierra Leone. You can well imagine the social and economic conditions in Sierra Leone. इतनी हैरान परेशान क्यों हो गया? आप नहीं पैदा हुए हो, आप इंडिया में हो। ठीक है, तो भाई अफ्रीका को एक तो कॉलोनियल पावर्स ने लूट खाया, फिर यहाँ पे जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स, फिर देयर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे जो बैकवर्ड कॉन्टिनेंट कोई है तो वो हमारा अफ्रीका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया वर्ल्ड में अफ्रीका में आता है। तो इधर मतलब ना एग्रीकल्चर अच्छा है, ऊपर ना ही यहाँ पर मिनरल्स की एक्सप्लोटेशन अच्छी है, ना यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, ना यहाँ पे काम अच्छा है, ऊपर से इन्फ्रिंजमेंट और यू कैन से इंटरफेरेंस ऑफ बिग कॉलोनियल पावर्स। पूरा अफ्रीका वाज अंडर कॉलोनी, सिर्फ 2 कंट्रीज को छोड़कर। एक इथोपिया कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ और दूसरी कंट्री लाइबेरिया जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुई। बाकी पूरा का पूरा अफ्रीका वाज कॉलोनाइज्ड बाय द ऑल डिफरेंट कॉलोनियल पावर्स। तो जितना एक्सप्लॉइट वर्ल्ड में अफ्रीका हुआ है और स्टिल हो रहा है, तो एक्सप्लॉइटेशन इज एट द पीक इन अफ्रीका। सबसे एक्सप्लॉइटेड कॉन्टिनेंट कोई अगर है तो वो अफ्रीका है, जो अभी भी हो रहा है।
हम भी बहुत एक्सप्लॉइट हुए, हमें ब्रिटिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट किया, बट हम आज़ाद हुए उनसे, और आज कितने हुए, 76 ईयर्स। तो हम काफ़ी अच्छा ग्रो कर गए हैं। अभी हम किसी भी आउटसाइडर्स की इंटरफेरेंस को हम एंटरटेन नहीं करते हैं, बट यहाँ पर अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो इट इज स्टिल बैकवर्ड कंट्री और कॉन्टिनेंट, ठीक हो गया जी। चलो जी आगे, ये थी आपकी कोस्टल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। अभी बात करते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज। लैंडलॉक्ड कंट्रीज में आपको जो अच्छी लगे उसको आप देख लेना। आपने नाम बुर्किना फासो का सुना है कभी? सुना है? गुड, तो मैं लिख देता हूं, बुर्किना फासो। देन माली, गुड। नाइजर, ना नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है, ठीक हो गया। फिर चड, देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी सुना नहीं होगा। देन वी हैव, ये आपको याद रखना है, साउथ सुडान। ये सुडान से टूटकर अलग हुई है। इट इज द लेटेस्ट न्यू कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसको बोलते हैं यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो इसकी कैपिटल है जूबा, इसको बोलते हैं यंगेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, कैपिटल इन द वर्ल्ड। इट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम सुडान, ठीक हो गया। देन इथोपिया का नाम पक्का सुना होगा। इथोपिया का ओल्ड मिडिवल टाइम में क्या बोलते थे इसको? एबिसिनिया। देन आपने युगांडा का नाम पक्का सुना होगा, रवांडा का नाम पक्का सुना होगा, युगांडा, रवांडा। देन बुरुंडी का नाम नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा ना, छोड़ दो। मलावी का नाम सुना है? नहीं सुना हुआ, नहीं सुना, रहने दो। जाम्बिया का नाम सुना होगा। फिर जिम्बाब्वे पक्का सुना होगा, और लास्ट में गैबरोन, सॉरी ये अपना बोट्सवाना। ठीक हो गया। अब दो और कंट्रीज हैं लैंडलॉक्ड अफ्रीका में, बट वो साउथ अफ्रीका एज ए कंट्री के अंदर है। ये अगर साउथ अफ्रीका है तो एक कंट्री साउथ अफ्रीका में यहाँ है और एक यहाँ है। एक का नाम है लिसोथो और एक का नाम है एस्वातिनी। इसका पहले नाम था स्वाजीलैंड। तो दीज टू कंट्रीज लाइज विद इन द टेरिटरी ऑफ साउथ अफ्रीका। वन इज लिसोथो, सेकेंड इज एस्वातिनी। न्यू नेम इसका एस्वातिनी है, ओल्ड नेम क्या था? स्वाजीलैंड था। अब कैपिटल्स, बुर्किना फासो की अजीब सा नाम है ओगो दोगो, माली बमाको, नाइजर नियामे, चड जमेना। पर स्पेलिंग इसके एनडी आगे जमेना है, इसको आप नड जमेना भी कह सकते हो याद रखने के लिए, अदरवाइज जमेना। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बांगुई। साउथ सुडान मैंने बताया जुबा, यंगेस्ट कैपिटल, एंड साउथ सुडान इज द यंगेस्ट कंट्री। इथियोपिया वेरी फेमस कैपिटल एडिस अबाबा। युगांडा कंपाला। रवांडा की गली। जाम्बिया लुसाका। जिम्बाब्वे हरारे, अगेन क्रिकेट प्लेइंग नेशन। बोट्सवाना गैबरोन।
डबल बी आएगा, गैब्रोन। लिसोथो की कैपिटल मसेरू और एस्वातिनी की मबाबने। ठीक हो गया। ये है आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। अब आइलैंड कंट्रीज यहां पे सिर्फ 6 हैं। ये लिख लिया आपने। एक बड़ी फेमस कंट्री है, सबने नाम सुना होगा, मेडागास्कर। वेरी प्रिटी एंड यूनिक कंट्री। ये है आपका मेडागास्कर आइलैंड। दो और बड़ी फेमस आइलैंड कंट्रीज हैं, पक्का नाम सुना होगा, मॉरिशस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फिर एक और बड़ी फेमस है सेशल्स, है ना। अब देखो, ये मेडागास्कर की लोकेशन है। मेडागास्कर के राइट में वी हैव मॉरिशस, मेडागास्कर के नॉर्थ में वी हैव सेशल्स। ये तीनों आइलैंड कंट्रीज इंडियन ओशन में। और एक मेडागास्कर के अंदर जाएंगे टुवर्ड्स अफ्रीका, यहां पर एक आता है जिसको बोलते हैं कोमोरोस। तो मेडागास्कर की कैपिटल आपकी आती है अंटनानारिवो। मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। सेशल्स की आपकी है विक्टोरिया। कोमोरोस की है आपकी मोरोनी। वेरी गुड। अब एक कंट्री अटलांटिक ओशन में आइलैंड कंट्री यहां पर है अफ्रीका की, इसका नाम है केप वर्डे। कैपिटल इसकी है पराया। एक कंट्री इसकी इधर है जिसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिप, और इसकी कैपिटल साओ टोम है। ये हैं आइलैंड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। अब मैक्सिमम जो कंट्रीज थी, या तो वो अफ्रीका में है, या वो यूरोप में है, या वो एशिया में है। ठीक है ना। अब बच गया हमारे पास क्या, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में गिन के 3 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में गिन के 12 कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में से 2 मेजर कंट्रीज हैं, बाकी आइलैंड कंट्रीज हैं। मतलब अभी कंट्रीज में ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। बट जो सबसे ज़्यादा आपको नंबर्स की बात करते हैं कंट्रीज की, तो वो इन 3 कॉन्टिनेंट में ही है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ठीक है। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो बाकी वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा बचता नहीं। देखो, एशिया में याद करना आसान है, क्यों? बचपन से आप एशियन कंट्रीज के नाम सुनते आ रहे हो। हाँ, रीजन स्पेसिफिक आपको नहीं पता था कि वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, साउथ एशिया में कौन सी आती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी आती हैं, ईस्ट एशिया में कौन सी आती हैं, सेंट्रल एशिया में कौन सी आती है, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। पर उनको नाम सबने आपने सुने थे। यूरोप की भी मेजोरिटी कंट्रीज के नाम आपने सुने हुए थे ना मेरे ख्याल से। अफ्रीका में कम सुने थे, फिर भी 60% तो नाम सुने ही होंगे आपने, पक्की बात है। बट उनको एक बार आप अच्छे से देख लो। अब आगे वर्ल्ड में कुछ खास नहीं बचा हुआ, सिर्फ यहां तक आपको दिक्कत थी एज फार एज नंबर ऑफ कंट्रीज वाज कंसर्न्ड। आगे ज्यादा कुछ नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। एक वहां पे आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है। ग्रीनलैंड एक सेपरेट कंट्री नहीं है, इट इज अंडर द रूल ऑफ डेनमार्क। तो वो डेनमार्क की कॉलोनी है। डेनमार्क यूरोप में है, उसका ये आइलैंड किधर आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो इट इज अ कॉलोनी ऑफ यूरोप, डेनमार्क। साउथ अमेरिका में भी आपने नाम सुना होगा, बोलिविया का, अर्जेंटीना का, ब्राजील का, यूरुग्वे का, चाइल का,
है ना, पेरू का, ये सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो अभी आगे कुछ खास कस्ट वाली बात, मेन कस्ट जो था वो आपका अफ्रीका में ही। ठीक हो गया, आज इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे मंडे को फिजिकल अफ्रीका, फिर हम शुरू कर देंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अदर्स। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन एनीबडी?